Gurudev, dear student, as you told me many times to explain about transpiration, you asked me many times to show one activity by which I can explain you what is transpiration. So today I am doing this activity and I'll show you how transpiration occur in a plant. For that, first we have to understand the parts of plant. As you all know, plants contain root system, very well defined root system. These are roots and these roots are spread under the soil. Root system always found under the soil, and the main function of this root is to anchor the plant, to hold the plant into the soil, and second one, it absorbs water and minerals from the soil. These are soil particle and soil particle contains water. आपको मालूम ही है पानी की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत जरूरी है. So these water particles and minerals are absorbed by the roots by xylem tissue. Xylem tissue present in the roots. Roots में present होता है and which is helpful to absorb water and minerals, and after that it takes that water and minerals to the leaf. वो जो जाइलम टिश्यू है वाटर एंड मिनरल्स को ले जाकर लीव्स को प्रोवाइड करता है. एंड एज यू ऑल नो, लीव्स आर कॉल्ड एज site of photosynthesis. They are called as kitchen of the plant. By the help of that water and minerals, which is also called as sap, उसकी मदद से ये जो लीफ हैं they perform photosynthesis. And some excess water, जो excess water है, that is evaporates from the leaf pores, which are called as stomata. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, और वो स्टोमेटा जो एक्सेस वाटर है, ये एक्सेस वाटर इसमें गया और वो आपके लीव्स के थ्रू क्या हो जाएगा, इट गोज आउटवर्ड, ये बाहर की ओर को निकल जाएगा. सो द वाटर लॉस फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल पोर्स which are called as stomata, that is called as transpiration. आपने देखा होगा कि गीले कपड़े हम लोग धूप में सुखाते हैं तो थोड़ी देर में सूख जाते हैं, फर्श में पानी गिरता है वो सूख जाता है, तो वो क्या है, that is evaporation, means the water changes into water vapors from any surface, that is called as evaporation. But when that evaporation occurs from the plant part, that is called as transpiration. So today I am going to show this activity by taking one plant. एक plant लेंगे, एक polythene लेंगे, and we can show this activity how water lose water vapor, किस तरह से वो water vapor के form में water को lose करता है, and that water vapor is collected inside one poly pack. एक पॉलीथीन के अंदर हम उस वाटर वेपर को कलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन नॉट कलेक्ट दैट वाटर वेपर इन द फॉरेस्ट, इन एनी dense area of forest, but we can collect these water drops at our home inside one jar or inside one poly pack. एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे और उसको कवर अप कर देंगे, और उसके बाद जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे वी कैन कैप्चर वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड दैट पॉलीथीन. आप पॉलीथीन के अंदर थोड़ी देर में देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और उसके लिए पॉलीथीन में कोई भी होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई होल होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर चली जाएंगी. सो यू हैव टू टेक सच टाइप ऑफ पॉलीथीन पॉलीपैक विच डज नॉट कंटेन एनी होल, और नीचे से उसको टाइट पैक करेंगे. किसी भी प्लांट कंटेनर में उसको टाइटली पैक करके अब जब हम उस प्लांट को कवर अप कर लेंगे वी विल सी दैट ट्रांसपिरेशन वेरी इजीली बाय दिस एक्टिविटी. सो बी रेडी फॉर दिस एक्टिविटी एंड आई एम गोइंग टू शो यू दिस एक्टिविटी. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन is very helpful to maintaining the water cycle,
जो वाटर साइकिल है उसकी मेंटेनेंस में बहुत जरूरी है, बिकॉज दे फॉर्म क्लाउड्स. When these water droplets accumulates, they form clouds, and you can see this example near the dense forest. कभी भी हम लोग जब जंगलों के आसपास जाते हैं, आप देखते हैं वहां कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है. We feel cool in such type of areas because of the presence of water vapors. And second one, we can see clouds near the ground. जंगल में थोड़ी ही ऊपर हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं पहाड़ों में. तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, बिकॉज दीज hilly areas contain lots of forest, और वहां से जितना ज्यादा वाटर वेपर्स चेंज होगा, वाटर चेंज होगा वाटर वेपर्स में, एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट्स एंड दे फॉर्म क्लाउड्स. तो क्लाउड्स बहुत नजदीक दिखाई देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. It is very helpful to maintain the climatic condition of that particular area. तो ये आपका जाइलम टिश्यू परफॉर्म करता है फ्रॉम द रूट्स, और आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हाउ फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द फूड मटेरियल. जब आपकी लीफ जो है फूड प्रिपेयर कर देती हैं, तो देयर इज वन अनदर टिश्यू विच इज फ्लोएम दैट डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द होल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो फूड को नीचे को भी लेके आएगा, वो फूड को हर जगह को स्प्रेड करेगा. दैट इज फ्लोएम टिश्यू. यू विल रीड इन अदर चैप्टर और अदर क्लासेस, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. फ्रेंड, इस एक्टिविटी को शो करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लांट पॉट लिया है और साथ में ली है एक पॉली पैक. आप देख सकते हैं दिस वन इज अ पॉलीथीन जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है. आप इजीली इसको देख सकते हैं. ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेंगी. एक सेकेंड, मैं आपको और अच्छी तरह दिखाती हूँ. वेट अ मिनट. ये देख लीजिए, कहीं पर भी आपको इसमें, अगर हम दोनों साइड से फोल्ड, ये देखिए इसे टर्न करें, तो यू विल नॉट गेट एनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन दिस. दोनों साइड से आप देख लीजिए, बिल्कुल भी पानी की बूंदें इसमें नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीपैक को इस डिब्बे के चारों ओर, जो ये प्लांट कंटेनर है, इसमें कवर अप कर लेंगे. तो चलिए इसको कवर अप करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको. ये देखिए, मैं इसको कवर अप कर रही हूँ इस तरह से, और बिल्कुल इसे टाइटली पैक कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी कहीं से भी इससे वाटर लॉस ना हो सके. एंड यू कैन सी इस थैली ने पूरा प्लांट को कवर अप कर दिया है, और नीचे से मैं इसे बांध दूंगी, और फिर हम इसको लेकर जाएंगे एक धूप वाले एरिया में जहां पर अच्छी सी धूप है. अभी तो हम अंदर हैं, अब हम इसको लेकर चलेंगे बाहर, और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो लीव्स हैं दे आर evaporating water vapors, which is the process of transpiration. और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगी आपके इस पॉलीपैक के ऊपर. तो चलिए इसको टाइट बांध करके हम इसे धूप में ले चलते हैं जहां पर एक्सेस सनलाइट है, और उस सनलाइट में फिर ये प्रोसेस बहुत जल्दी ही हमें देखने के लिए मिल जाएगी. स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी आई हैव कवर अप दिस प्लांट बाय दिस पॉलीथीन. नीचे से बिल्कुल टाइट मैंने बांध दिया है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी कोई होल ना हो, by which water can come outside from this polythene, and we will not get idea about the transpiration. अगर कोई होल हुआ तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें नहीं मिल पाएंगी. That's why I am putting this under the sunlight to get this process very fast. क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होती है. तो अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इस पॉलीपैक में बहुत सी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, जो कि पहले बिल्कुल सूखी हुई पॉलीपैक थी. सो द कंक्लूजन इज दैट these water droplets comes from these plant leaf by the process of transpiration. ये देखिए, अब कुछ 10-15 मिनट के बाद
हम इस पॉलीपैक के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। ये देखिए, these are minute water droplets which I am going to show you after opening this polypack from this plant container। तो आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स, मैं इसको पॉलीपैक को खोल के दिखाती हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो अंदर से इसको ट्रांसलूसेंट बना रही है। ये देखिए, जो पॉलीथीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, नाउ इट बिकम ट्रांसलूसेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज वाटर vapors। Now we can collect these water droplets inside this polypack. For that we have to open this polythene from this plant container। Now I am going to open this। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉलीपैक मैंने ढीला कर दिया है। अब मैं इसे उतार रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस। वी कैन कलेक्ट दिस वाटर हियर। ये आप देख सकते हैं पानी की बूंदें। यू कैन गेट दीज वाटर ड्रॉपलेट्स। शायद आपको दिख रही होंगी पॉलीपैक के अंदर थोड़ा सा ये ब्लैकिश जो डेड लीव्स थी वो भी चिपक गई हैं, लेकिन आपको पानी की बूंदें क्लियर दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा हाथ नम करके ये देखिए, हाथों में ये पानी की बूंदें हैं। तो ये अगर हम कुछ देर के लिए और रखें तो वी विल गेट लॉट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। सो यू कैन सी इजीली अंडर दिस पॉलीथीन, इनसाइड दिस पॉलीथीन you can see lots of water droplets, and this is the result of the process transpiration, the water loss from the leaves, from the plant, from the stomata, and this is the activity which show that plants release water, and that is called transpiration. So I think now you will get everything about transpiration. So this is very beneficial process. This is very important process to maintain the water cycle, to maintain the climatic condition, to maintain the weather condition, and this is also very good for maintaining water cycle. तो ये देखिए, बहुत क्लियर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स अब दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये है ट्रांसपिरेशन। अगर आपको समझ में आया, इफ़ यू विल गेट एवरीथिंग, सो प्लीज़ कमेंट, गिव योर लाइक। और अगर कोई और एक्टिविटी आपको चाहिए तो आप बताइएगा। आपके लिए आपकी मैम फिर से कोई नई एक्टिविटी तैयार करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।